So day one we talked about the introduction about your database, what database is and what are the drawbacks of the file system. So can anyone tell me what are the drawbacks with the file system? What are the drawbacks with the file system? Data is not secure. First one, data is inconsistent. Then data manipulation is difficult. What else? Data synchronization. Perfect. Data synchronization. What else? Sorry. Data projection. Yes, data projection is very difficult. Data projection मतलब read करना, data read करना. These are the drawbacks, and to overcome this we talked about the database. So what is database? What is database? It is a set of information, data which is stored in a structured manner. Okay, perfect. What are the types of databases? So we have relational database and non-relational database. Relational and non-relational database. Okay. Now what do you mean by relational database? Data is stored in terms of rows and columns. And in case of number of columns are fixed, for every record or row, number of columns are fixed for every record. Non-relational, number of columns are variable from one row to another row. Okay, we talked about what is DBMS also. What is DBMS? DBMS stands for Database Management System or Software. DBMS is a set of programs which are used to manipulate the databases. These are simple programs which are there, which will help you to manipulate the set of database. So database also kind of a file. It is also kind of a file. तो उन files को manipulate करने के लिए आपके पास DBMS. So what are the types of DBMS we have? We have RDBMS, what is this? RDBMS is a software which is used to किस चीज के लिए? Which is used to manipulate relational databases. And we have non-relational databases. Non-relational
DBMS also. So what are the examples of RDBMS? Examples, we have MySQL, then we have MySQL, Postgres, Oracle, and so on. Non-relational, this is used to manipulate which database is non-relational. Examples, MongoDB, then we have MariaDB, yeah, Cassandra we have, and so many. When we talked about what is database client and database server, what is database client? Yes, database client, can you tell me? It is a software, which is used to interact with the database server. Using database client क्या करते हैं हम? Database client, we execute the query, we execute or hit the query, SQL queries to the server. Examples, Workbench we have, then we have Oracle, SQL Developer we have, DB Weaver we have Data Grep, and there are n number of softwares are there. What is database server? It is also software. It is a software, as we know that it is a software which is running on server machine to interact or to manipulate which files? Database files. It is also software. Example, MySQL community server software. I am just revising the content. ये सारा हमने देखा है already. I am just revising. MySQL community server software. Then we have Oracle server. We have Oracle SQL server. Then we have Postgres. Then we have SQLite also. There is SQLite is also there. DB2 is there. There are n number of other softwares are there. There are n number of. तो हमने यूज किया था ये वाला कम्युनिटी सर्वर एंड वर्कबेंच. सो व्हाट वी हैव टू इंस्टॉलेशन में हमें क्या करना है? इंस्टॉल अ डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर. कहाँ पर मिलेगा आपको ये? मैंने ऑलरेडी बताया था आपको. दैट इज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. यू कैन गो टू MySQL कम्युनिटी सर्वर, जस्ट सर्च दैट. यहाँ पर जो आपको इंस्टॉलेशन का लिंक यहाँ पर मैं आई विल जस्ट ऐड दैट. ये वाला पहला करना है. उसके बाद इंस्टॉलर डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर. आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है. यू कैन, इफ यू जस्ट गूगल डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स, you will get a lot of 25 based client softwares. You can pick one of them which is free. So you will find n number of नहीं ये डेटाबेस ये तो उन्होंने डायरेक्टली ऐड ही चला दिया कुछ. तो चलो ये नहीं चाहिए. हाँ, DB Viewer है आपके पास, DB Views है, बहुत सारी है. बहुत सारे फ्री है, बहुत सारे पेड भी है. तो आपको यू
you can try. Oracle also provides some SQL developer is there. They also provide SQL developer. A lot of this Oracle database server is different thing, and Oracle SQL developer is different thing. Oracle SQL developer also you can download. This is help you connect with the but this is also one of the best software you can download. If you see Oracle SQL free, it is a free integrated development environment that simplifies the development and management of Oracle database in both traditional and cloud. It also helps you, मतलब मोस्टली एसक्यूएल ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर के साथ काम करता है, लेकिन आप माई के साथ भी कर सकते हो उसके साथ. यू कैन कनेक्ट विद द माई सिक्वल ऑल्सो, बट हम सिंपली यूज करने वाले हैं डीबी वीवर. कौन सा है? डीबी वीवर. यू कैन यूज डीबी वीवर ऑल्सो. इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस. विल जस्ट गेट द लिंक. Community and pro, just like Java, you have to just select the version and you are sorted. ये इंस्टॉलेशन हो गया था हमारा. देन व्हाट इज एसक्यूएल? इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. कैन यू टेल मी व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, and SQL is also a standard. It is a standard defined by ANSI. It is a standard, मतलब queries कैसा होना चाहिए. So SQL is implemented by, SQL is a set of commands or instructions, queries which are given to the database server software to perform manipulations. Perform क्या क्या कर सकते हैं हम इन क्वेरी के साथ? To perform manipulations और डेटा प्रोजेक्शन कर सकते हो आपके साथ. You can perform the data projection. You can perform the manipulation. Data projection मतलब read करना, right? Now using SQL what we can do lot of stuff. तो हमने उसमें से कुछ queries देखी थी. तो DDL queries में हमने इतनी सारी queries देखी थी. We can create a database, create new database. So what is the command? Create new database. Create new database. You can drop database. You use the database, alter table. उसके बाद create table is also DDL query. Create table. Table कैसे create करिए ये भी देखा था हमने. Alter table में क्या क्या कर सकते हैं हम? We can add a column, we can rename a column, or we can remove column. We can add constraint, we can remove constraint. उसके बाद create table के alter table. Then we might have there is one more thing. What is that? Drop table. ये सारी structured basis पे है, मतलब structure container modifier करने के लिए जो आपका container उसका structure. So we have a database. Inside that we have multiple tables. So database create करना, drop करना, उसका rename करना, table create करना, table का structure alter करना, उसको drop करना, ये सारी चीजें होती है आपकी DDL queries. There are a number of other queries also, but these are the basic queries. ये सारी queries हमने देखी है. These are called as DDL queries. So DDL queries, what they do? DDL queries modifies the structure of database or table. स्ट्रक्चर मॉडिफाई करता है वहां पर. तो इतनी सारी क्वेरीज हमने देखी है. These are all about DDL queries. Now DML queries, what they do? DML stands for data manipulation language. यहाँ पर क्या होता है? If you see here,
using DML commands, what we can do using DML commands, we can perform manipulations. मतलब डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना. Using DML commands we can perform manipulations on table or database also. What we can do using DML commands, we don't alter the structure. इसका structure of database और टेबल, उसका स्ट्रक्चर में हम कोई चेंज नहीं करते. तो इंसर्ट इंडो हमने देखा है, अपडेट देखा है, डिलीट देखा है. तो इंसर्ट इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस टेबल. अपडेट इट इज यूज्ड टू अपडेट अ सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड्स. डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट अ सिंगल रिकॉर्ड और डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स आल्सो. ये क्वेरीज भी हमने देखी थी. Then DQL queries, we talked about. So DQL queries, using DQL queries, what we do? Using DQL queries, we perform the data projection. So data projection के लिए मोस्टली आपकी कौन सी क्वेरीज यूज होते हैं? DQL queries. तो हमने यहाँ पर शो डेटाबेस किया था, शो टेबल्स किया था और सेलेक्ट क्वेरीज. वी हैव देन वी हैव डिस्क्राइब टेबल आल्सो, शो टेबल्स, शो डेटाबेसेस एंड सेलेक्ट क्वेरीज कम्स अंडर द डेटा क्वेरी लैंग्वेज. ये सारा हमने देखा था और हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स भी देखे थे. सो विल बी टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रेंट्स. वी ऑलरेडी नो दिस कंस्ट्रेंट्स, बट मैं आपको फिर से एक बार I will be just revising this. What do you mean by constraints? Constraint means what do you mean by constraints? Constraints mean yes. What do you mean by constraint? अरे बोलो. Okay. Now see here. Constraints, what we are going to talk about today, constraints will be looking into. Constraints means restrictions. Constraints means restrictions or set of rules that we apply on a particular column. What are constraints? Constraints are nothing but set of rules or set of limitations, you can say, which are applied on a particular table column. Right? Now we'll see one by one. So what are these? Constraints are rules defined on a particular column or a set of column. Not only single column, you can define on multiple columns also. Now there are multiple constraints we have: primary key, foreign key, unique constraint, check constraint, not null constraint, and default constraint. So we'll see one by one all of these constraints. तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट. सो प्राइमरी की कांस्टेंट हमने ऑलरेडी देखा है. सो व्हाट प्राइमरी की? सो ऑल ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स आर एप्लीकेबल when so we have to define the constraints on a table column at the time of table creation, or we can
alter the table and add the constraint, right? क्या कर सकते हैं हम? बहुत सिंपल है, मतलब एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन ही हम उसको रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकते हैं, या लेटर ऑन हमको लगता है कि सी हियर केयरफुली, ये सारी कॉन्स्टेंट्स आर, एवरी कंस्टेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको सबको आना ही चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करते टाइम आप कंस्टेंट ऐड कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हो, या बाद में आपको लगता है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐड करना है आपको, बाद में भी कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए एलिजिबल डेटा वहाँ पर होना चाहिए। विल टॉक अबाउट दिस कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की होता क्या है? सो यू कैन थिंक ऑफ so we'll be talking about the constants. Now when we have a table, when we create a table, we'll have a set of columns, right? So I have these some set of columns, so I have 4 columns. I am creating the first time table, so I have this ID, then we have name, and we have email, phone. So this is of integer type and rest of the things are varchar type. Now what I want this particular ID. What I want this particular ID to be unique. I want this ID column, I want unique. What is my requirement? Now I don't have the record. Now whenever someone is going to insert the record in this particular table, जो भी कोई इस particular table के अंदर डेटा इंसर्ट करने वाला है, तो जब भी डेटा इंसर्ट करेगा तो मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर आईडी कॉलम में वैल्यू जानी चाहिए कैसी, यूनिक, और मुझे चाहिए नॉट नल। तो यहां पर कंपलसरी वैल्यू होनी चाहिए। नल का मतलब होता है देयर इज नो वैल्यू, एंड आई डू नॉट वांट, उसका उल्टा नॉट नल, आई वांट अ वैल्यू देयर कंपलसरी, आई वांट अ वैल्यू एंड दैट वैल्यू मस्ट बी ऑफ यूनिक। So I want both the things, then I mark this particular field. So what I want a primary. Primary key का मतलब क्या होता है? Now this particular column is going to be a primary key identification for the, primary means first thing that will be identifier for your given row. मतलब कोई भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कॉलम यूज होने वाला है? ID. So ID column is the column which is uniquely identifying the rows, मतलब हर एक रो का कोई यूनिक आइडेंटिफायर क्या रहेगा? ID. तो प्राइमरी की कैसा होना चाहिए? नॉट नल एंड यूनिक। नाउ ये पहला आपका, अगर मैं यहां पर मुझे क्या चाहिए, ईमेल, सो ईमेल व्हाट आई वांट यूनिक। यूनिक और प्राइमरी की दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी की इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। कौन कौन सी? यूनिक और नॉट नल। अगर मैंने ईमेल यूनिक कर दिया तो उसमें से कोई एक वैल्यू नल हो सकती है क्या? यस, ऑब्वियसली। सो आई हैव सम वैल्यूज व्हिच इज A, B एंड नल। आई कैन कीप वन ऑफ द ओनली वन फील्ड एज नल। तो पूरे कॉलम में, मतलब लेट्स से आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स है, 10,000 में बस एक ही नल वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, दैट इज द यूनिक। और अभी मुझे सबका फोन नंबर चाहिए, so I say not null. So when I specify this restriction or constraint on this particular column phone, not null का मतलब होता है यहां पर कंपलसरी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है, यहां पर आप वैल्यूज डालो, लेकिन वैल्यू कैसी होनी चाहिए?
यूनिक। कैसे वैल्यू होनी चाहिए? यूनिक। यहाँ पर एक नल वैल्यू हो सकती, कितनी सारी नल वैल्यूज हो सकती है? ओनली वन। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो कैसे होने वाली है? यूनिक। अभी आपने इस टाइम में तीन कंस्टेंट आपने देखे, प्राइमरी की कंस्टेंट, यूनिक कंस्टेंट एंड नॉट नल कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट का मतलब होता है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सारी फील्ड्स कैसी रहेगी, उस कॉलम में यूनिक रहे, डुप्लीकेट्स नहीं रहेगी। नॉट नल मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू कंपलसरी होगी या होगी। ये हो गया आपका तीसरा कांस्टेंट। अब किसी ने लेट से नेम किसी ने इंसर्ट नहीं किया या किसी ने फोन नंबर, आपके पास एक और कॉलम है, तो अब लेट से किसी ने नेम वैल्यू इंसर्ट नहीं करी, तो आप चाहते हो कि उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू मिले। नहीं दोगे तो क्या मिलेगा? डिफॉल्ट वैल्यू नल। नहीं दोगे तो क्या होगी उसकी वैल्यू? नल। तो आप वहां पर लिख सकते हो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्शन के टाइम यहां पर कोई वैल्यू आप इंसर्ट नहीं करते हो तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू उसे असाइन हो जाएगी, असाइन वैल्यूज। सो डिफॉल्ट इज वन ऑफ द कंस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करते टाइम उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी तो उस पर मिल जाती है डिफॉल्ट वैल्यू। कोई जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, दैट इज वन ऑफ द थिंग। ये आपका 1 2 3 एंड फोर्थ कंस्टेंट भी। हम फोर्थ कंस्टेंट। Now there is one more constraint. What is that? Check. So there is a check constraint. So let's say I have one more column and which has, let's say, gender. Gender. अभी यहाँ पर I want to have a check कि इसमें एक इसका जो वैल्यू रहेगा, so this value must be of one of the value. यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? बस मेरे पास दो ही वैल्यू होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? इस पर्टिकुलर कॉलम में आई वांट ओनली मेल एंड फीमेल जेंडर, दिस इज द ओनली थिंग आई हैव। इसके अलावा दूसरा कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकता। अगर दूसरा कोई वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई करेगा, यू विल गेट द एरर। सो सच थिंग इफ यू वांट टू अप्लाई, तो आप यूज करते हो चेक। क्या मतलब होता है? चेक। चेक और भी चेक कर सकते हो। लेट्स से आईडी फील्ड है, तो वहां पर आईडी शुड नॉट बी नेगेटिव, आईडी शुड नॉट बी नेगेटिव, वैसा चेक भी आप लगा सकते हो वहां पर। यू कैन अप्लाई चेक लाइक दैट आल्सो कि मेरा जब कोई यहाँ पर एंट्री होगा, सो आईडी शुड नॉट बी नेगेटिव और आईडी शुड नॉट बी लेस देन 100 और आईडी शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से सम नंबर। ऐसा चेक भी आप कंडीशन डाल सकते हो आप। या दूसरा ये कर सकते हो कि मुझे दूसरा कोई ईमेल जो ईमेल होगा उसमें @ सिंबल होना चाहिए। व्हाट आई वांट @ सिंबल इन द ईमेल फील्ड। अगर नहीं तो एरर आना चाहिए। So if you want to add such kind of restriction, then you can use the constant called as check. क्या क्या constraints हमने देखा है एक बार? प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? अगर कोई कॉलम को आपने प्राइमरी की बना दिया, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया, तो उस पर्टिकुलर कॉलम में you will have unique values and you cannot keep that column value empty. तो वहां पर कंपल्सरी आपको वैल्यू स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। You must specify a value there, right? Now default का मतलब क्या होता है? If you make some column, if you apply a default constraint on a column, then that particular column will have a default value if the column value is not specified. मतलब उसमें जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और वहां पर कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी तो वहां पर वैल्यू रहेगी डिफॉल्ट, जो भी स्पेसिफाई करेंगे। यूनिक का मतलब होता है उस पर्टिकुलर कॉलम में जो भी इंसर्ट वैल्यू होगी, सो दैट विल बी यूनिक, दैट विल नॉट बी डुप्लीकेट। नॉट नल का मतलब होता है अगर मैंने कोई कॉलम को नॉट नल बना दिया, इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी मतलब वैल्यू देना पड़ेगा आपको। नॉट नल मीन्स यू कैन नॉट कीप दैट वैल्यू एज एम्प्टी। ये हो गया आपका नॉट नल। और चेक मैंने बताया कि कोई भी कॉलम के ऊपर आपको कोई चेक करना है कि कोई नंबर शुड बी ग्रेटर दैन, लेस दैन, या उसमें वैल्यू कुछ कंटेन होना चाहिए या उसमें से होनी चाहिए। You can specify that using check. और एक और आपके पास है foreign key. So we'll talk about that foreign key constraint क्या होता है।
So there is one last constant that is foreign key. So foreign key constant क्या होता है? अगर मैं कोई कॉलम को foreign key बोलता हूँ, so if I apply a foreign key constant on one of the column, अभी लेट से मैंने यहाँ पर एक कोई फील्ड है, लेट से यहाँ पर कोई कॉलम है मेरा, और इस कॉलम को अगर मैं बना देता हूँ फॉरेन की, तो इसका मतलब क्या होता है, इस कॉलम की वैल्यू विल बी डिपेंडेंट, दिस कॉलम वैल्यू विल बी अ वैल्यू विच इज फ्रॉम अनदर टेबल्स प्राइमरी की. आई विल टॉक अबाउट दिस. क्या होता है फॉर इज फॉरेन की, अगर मैंने कोई टेबल का कॉलम, इसको अभी मैंने बना दिया, नाउ आई अप्लाई अ फॉरेन की ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलम. इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी, सो दैट वैल्यू विल बी फ्रॉम सम अदर टेबल्स प्राइमरी की. फिर से एक बार, फॉरेन की कंस्टेंट अगर मैंने कोई कॉलम पर अप्लाई कर दिया, सो दैट कॉलम वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू इनसाइड दैट, इन दैट कॉलम वैल्यू विल बी अ वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल्स प्राइमरी की. और फॉरेन की कैन बी डुप्लीकेट, यस. इस पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है क्या, यस. आई विल टॉक अबाउट दैट, आई विल गो वन बाय वन. सो स्टार्ट करते पहला वाला आपका प्राइमरी की. सो व्हाट इज प्राइमरी की? इफ आई राइट दिस पर्टिकुलर कंस्टेंट ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम, it will uniquely identify that particular row and it must contain unique values and cannot contain null values. It cannot contain null values. तो constant कैसे add करोगे आप? You can apply like this. We have already created the table. I will just create a, I will just use the table. What was the table we were using last time? Okay, this was the table. This was the database. So I will use okay, so I have started using this. Now I am going to create a table inside this particular database. Create table is the keyword. उसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना है. You want to create a table. Now let's say I am creating a table. Let's say student. I am creating a table called as student, and it will have some couple of fields. So it will have ID, and that ID will be of integer, and I want this particular field to be a primary key. तो यहाँ पर syntax देखो, simple है, column name, data type, and the constraint name. Then I have name, this will be varchar, and I will have this 200. And what I want this particular field to be inserted. I want some value. अगर कोई insert नहीं करता है, अगर कोई value insert नहीं करता है, so default क्या value हो सकती है, you can specify that. So I will say ABC. Okay, one by one we'll go. Varchar, I want an email field, email, and this will be also varchar. Then I want a phone, and this will be a integer value, and I want this compulsory value. I want this compulsory value. Check ID, name, email, that's it. Table is created. This is how the table is created. और यहाँ पर कुछ देखो आप, मैंने बस टेबल को डिस्क्राइब किया. ID, टाइप, नल. नल कहाँ पर अलाउड है? बस दो जगह पर, नेम और ईमेल में. ID और फोन में आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते. सो लेट मी ट्राई टू इंसर्ट सम वैल्यू.
insert into टेबल का नाम student and I will specify the columns ID, name, email and phone. Then I will have specify the values. अगर मैंने यहाँ पर नेम नहीं दिया तो चल जाएगा, दैट्स परफेक्टली फाइन. यहाँ पर तो आईडी 3 ही कॉलम दे रहा हूँ मैं. और फोन भी नहीं देता हूँ मैं. आई विल जस्ट ट्राई टू गिव ओनली 2 थिंग्स, 1 and let's say ABC. Now see here, I am just inserting a record और उसमें 2 कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ. The moment I field phone does not have a default value. Field phone does not have a default value. तो इनका कहना है कि आप फोन फील्ड को खाली नहीं रख सकते. तो यहाँ पर फोन फील्ड के लिए मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ. सो नॉट नल लिखने से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन आई स्पेसिफाइड द फील्ड एज नॉट नल, it will make sure that there is some value. It will make sure that there is some value. Right? Now I will alter the table. I will just alter the table. यहाँ तक क्लियर है? 2 चीजें क्लियर है. प्राइमरी की से आपकी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू अगर मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, यहाँ पर मैंने बस abc@gmail और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी है. ID does not have a field value, default value. तो यहाँ पर कंपलसरी आपको वैल्यू देना पड़ेगा. Now I am inserting the one more time same record. क्या बोला उसने इस बार? डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की स्टूडेंट प्राइमरी की. मतलब आप डुप्लीकेट भी ऐड नहीं कर सकते वहां पर, उसे एम्प्टी भी नहीं रख सकते और डुप्लीकेट भी नहीं रख सकते. दैट इज द रिस्ट्रिक्शन. अब ये रिस्ट्रिक्शन आपने ऐड करी है. नॉट नल आपको पता है कि यहाँ पर वैल्यू कंपलसरी देनी पड़ेगी. अगर नहीं देते हो तो आपको एरर आएगा क्वेरी एग्जीक्यूशन के टाइम की, दिस फील्ड डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू. ठीक. I will just drop a table. How I drop a table? Drop table name. What is the table name? It's a student. Okay. Okay, that's fine. So I have just dropped the table. Now I will create the table one more time, but this time I am going to add some constraint different. So this will be not null and I want this particular name or email field. Let's take the email. अगर कोई email नहीं देता है, अगर कोई email value नहीं देता है तो मुझे वहाँ पर कुछ default value चाहिए. So let's say default value is abc@gmail.com. Comma was missing. Now if you see the table, how the table is created, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा default value. What is the default value? Now I will try to insert a record into this and I will not specify email. I will not specify email. I am just inserting ID and phone. Now just see the data from a student. यहाँ पर उसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिली है? abc@gmail.com. हमने कुछ एंटर किया था यहाँ पर? No, we haven't inserted anything. We haven't inserted anything at all.
I will try with one more record. I will just insert some other record. See here. फिर से एक बार आप चेक करो. इस एक बार डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई. राइट. और किसी का क्वेश्चन था कि हम एक कॉलम पर मल्टीपल कंस्टेंट्स ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं हम. कैसे? Now phone, I will just drop the table one more time. I have dropped the table and I'm going to create not null and unique. Not null and unique. यहाँ पर मैंने क्या कंस्टेंट लगाया? दो कंस्टेंट, एक तो नॉट नल और दूसरा है यूनिक. टेबल क्रिएट हो गया. नाउ इफ यू सी हियर, आई विल जस्ट सी द टेबल. आईडी, ईमेल, आईडी, नेम, ईमेल एंड फोन. तो यहाँ पर नॉट नल भी अलाउड नहीं है. द वैल्यू मस्ट बी देयर. यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ. आईडी है 1 और फोन नंबर भी है 1. इंसर्ट हो गया. आई विल चेंज मैंने ट्राई क्या किया? एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ 1, abc@gmail और फोन नंबर है 1. तो यहाँ पर अभी आप फिर से 1 नहीं ऐड कर सकते. यहाँ पर फिर से 1 नहीं ऐड कर सकते. तो यहाँ पर आपको दूसरी वैल्यू देनी पड़ेगी. सो आई हैव टू स्पेसिफाई, लेट्स से 2. नाउ इट इज एबल टू हिट. तो दो कंस्टेंट्स मैंने एक बार ऐड करे, नॉट नल एंड यूनिक. तो डिफॉल्ट क्लियर है. This is how we create a primary key. Unique we also talked about. Unique क्या करना है आपको? Ensures that the all the columns in this particular table will have the unique values. Duplicate नहीं रहेगा. तो आप यहाँ पर unique लिख लो. That's it. Then not null also we talked about. Not null में क्या करना पड़ता है आपको? Not null मतलब वहाँ पर compulsory value specify करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर not null आपको apply करना पड़ेगा. हमने not null use किया क्या यहाँ पर? Yes. नॉट नल ऐसे लिखोगे. इससे होगा क्या? ensures that every column, whatever the column we have, so it will have a compulsory some value, so it cannot have null value. मतलब वहां पर वैल्यू स्पेसिफाई करना पड़ेगा. so it is enforcing or restricting or mandating that particular column must have a value. क्लियर है? 3 कंस्टेंट्स. और हमने डिफॉल्ट कंस्टेंट भी देखा है. So default constraint में क्या होता है? What is the use of default constraint? If I apply a default constraint on a column, if the while inserting a row, if the column value is not specified, if the column value is not specified, it is going to put a default value that we specify. तो यहाँ पर अभी लेट से कोई टाइम स्टैम्प दे सकते हो आप. That is also there. अगर कोई वैल्यू नहीं देता है तो वहाँ पर कुछ एक्टिव वैल्यू सिंगल कोट में आप दे सकते हो. ठीक, सिंगल कोट या जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे डेटा टाइप है. नाउ वन लास्ट थिंग, सेकंड लास्ट, चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो चेक कंस्ट्रेंट विल जस्ट सिंपली से I will just drop the table and see here. Okay. Now I am going to apply a check constraint on this particular phone number. So I say check. कौन सा वाला चेक? यही है क्या? वो वाला अलग चेक है, वो मेरे को आदत हो गया वो. चलो ठीक है. फोन एंड चेक. अभी चेक क्या करोगे? आपने चेक लिखा है. चेक का मतलब क्या होता है? यू वांट टू ऐड सम काइंड ऑफ अ चेक ऑन दिस. So what you can specify? So I want this phone number should be greater than 100. Check का मतलब क्या हुआ? So whatever the phone number you are having, this value must be greater than 100. देखते ट्राई करते इसको.
मैंने टेबल क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने एक मल्टीपल कंस्टेंट्स लगाए, यहाँ पर नॉट नल एंड यूनिक। अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता है तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर मैंने चेक कंस्टेंट लगाया। मैंने क्या लगाया? चेक कंस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि while inserting the value it is going to make sure value of this particular phone number is greater than 100. If it is not, it is going to give you the error. तो करते हैं ट्राई। और यहाँ पर मैंने लिखा है अभी 2, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 100, लेकिन हम कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं? 1, सॉरी 2 वैल्यू है। स्टूडेंट कंस्ट्रेंट इज वायोलेटेड। कंस्ट्रेंट वायोलेशन रूल वायोलेट कर लिया आपने, ब्रेक कर लिया कि वैल्यू कौन सी एक्सपेक्टेड थी? मोर देन 100, लेकिन आपने इंसर्ट कौन सी करने का ट्राई किया? लेस देन 100, सो इट विल गिव यू एरर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 101 एंड सी नाउ द वैल्यू इज गेटिंग एडेड। सिंपल। चेक कंस्टेंट आप मल्टीपल चेक भी लिख सकते हो। मुझे एक और कंस्टेंट ऐड करना है, जस्ट सेकेंड। I will just add one more gender and this will be varchar. ठीक। I am going to drop this table और यहाँ पर मुझे क्या करना है? टेबल ड्रॉप कर दिया। Now I am going to add a check on the gender field. क्या जेंडर चेक मुझे ऐड करना है? चेक। So I want value to be there. क्या चेक ऐड करना है मुझे? चेक। क्या? कि ये जेंडर वैल्यू है, so जेंडर लाइक और इन भी कर सकते हो आप, या लाइक भी कर सकते हो। so जेंडर लाइक और इन भी कर सकते हो, दैट इज फाइन। इन मतलब इन ऑपरेटर विल बी चेकिंग कि आपका मल्टीपल वैल्यूज के साथ चेक होने वाला है। so जेंडर इन ठीक है। तो जब भी आप यहां पर कुछ वैल्यू इंसर्ट करो जेंडर में, तो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? मेल या फीमेल, दैट्स इट। एम और एफ, उससे अलावा कुछ वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई करते हो तो यहां पर देखो जेंडर आई विल ऐड, और यहां पर मैंने कुछ XYZ लिख दिया। कंस्टेंट वायोलेटेड। व्हाट इज द कंस्टेंट? जेंडर कैन नॉट बी अदर देन दैट। सो अभी यहां पर मैंने लिखा M. So you are able to add, क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने? इसमें वैल्यू कौन सी आएगी? कंपलसरी इनमें से ही आएगी। ये कंडीशन फॉलो होगी तभी वो इसमें आंसर इसमें वैल्यू ऐड करने देगा आपको। सिंपल, क्लियर है? आप मल्टीपल चेक, बहुत सारी कंडीशन कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, आप बहुत सारी और भी चेक कंडीशंस ऐड कर सकते हो। लेट्स से मुझे चेक करना है कि इसका M से स्टार्ट होता है, M से एंड होता है, F से, ये जो भी है, मल्टीपल चीजें आप रख सकते हो। या आप यहाँ पर स्मॉल m लिख सकते हो, स्मॉल m लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल f, फिर स्मॉल में आप कैपिटल, मल्टीपल ऑप्शंस आप लिख सकते हो। यू कैन डू दैट आल्सो, मल्टीपल इसमें से चेक कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? ओके, सो लेट मी ड्रॉप द टेबल। Now we'll be seeing now this foreign key constant. Foreign key constant, अभी foreign key constant ऐड करने से पहले कंपलसरी है कि दूसरा टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट हो। फॉरेन की क्या होता है? सो फॉरेन की, अगर कोई अभी मेरे पास कोई कॉलम है उसको मैं फॉरेन की कंस्टेंट ऐड करता हूं, ठीक है, कोई नहीं, दूसरे, अगर मैं कोई कॉलम पर फॉरेन की कंस्टेंट ऐड करता हूं, सो व्हाट विल हैपन? वो कंस्टेंट क्या चेक करता है? सो इट इज गोइंग टू चेक इफ द वैल्यू स्पेसिफाइड इन दिस कॉलम
is it from some other table column? मतलब फॉरेन की वन टेबल, एक कोई टेबल के अंदर जो कॉलम आपने स्पेसिफाई फॉरेन की, उसकी वैल्यूज आप मतलब वहां पर कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए? दूसरे टेबल की प्राइमरी की। समझ में आ रहा है? आई विल स्पेसिफाई दैट। एग्जाम्पल, आपके पास कस्टमर है और कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर। कस्टमर क्या करता है? ऑर्डर प्लेस करता है। तो कस्टमर ने कौन सी ऑर्डर प्लेस करी है, उसका डिटेल दूसरे टेबल में। सो विल स्पेसिफाई दैट आल्सो। और भी बहुत सारे एम्प्लॉई हैज़ अ डिपार्टमेंट का डिटेल अलग से रख सकते हो, या कस्टमर का डिटेल्स आप अलग लिख सकते हो। आई विल डू दैट। सो आई विल फर्स्ट ट्राई टू शो यू सिंपल example, how do I create a foreign key constraint और how do I apply a foreign key constraint on a table। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, एक ऑलरेडी एक टेबल होना चाहिए। So what I will do, I will take a simple table, create table, and there I'm going to specify customer, create table customer, and there I'm going to specify a couple of things, id as int, and this will be a primary key. Then we'll have a name, and this will be varchar 200. Then we'll have address varchar 300. Tick. Clear? I'll create this table. I'll create this table. I'm going to create a table called as order table. Orders बोल सकते हो, orders table, and it will have ID also. This will be order ID. You can specify, that is also fine. Order name and who has placed the order. ऑर्डर का नाम कुछ होगा। अब मुझे पता करना है कि ये ऑर्डर किसने प्लेस किया। अगर मैं ऑर्डर का टेबल देखूं, उसमें 10 एंट्रीज है ऑर्डर्स, तो आपको पता करना है कि ये कौन सी ऑर्डर किसने प्लेस करी है। तो आपको क्या लिंक करना है? फॉरेन की इज यूज टू लिंक मोर देन वन टेबल्स, मतलब 2 टेबल को मुझे कनेक्ट करना है अभी। हाउ डू आई डू दैट? अब मुझे क्या करना है, अभी किसने ऑर्डर प्लेस करी, कौन से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करी, कैसे पता चलेगा? अभी इस ऑर्डर टेबल में 1000 ऐसे फील्ड हो सकते हैं, बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं। तो एज इट इज आप दूसरे फर्स्ट वाले टेबल में रख सकते हो, लेकिन वो तो बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर एक क्या करना है, कस्टमर आईडी। क्या फील्ड होगी? कस्टमर आईडी, एंड दिस विल बी ऑर्डर आईडी। कस्टमर आईडी ये कौन सा टाइप का है? इंटीजर टाइप का। ठीक, अगर मैं एज इट इज क्रिएट करूं तो दोनों टेबल में कोई रिलेशन नहीं रहने वाला। अगर मैं अभी ऐसे ही एग्जीक्यूट करता हूं टेबल, तो दोनों टेबल में कोई रिलेशन होने वाली क्या? कस्टमर और इनको। सो व्हाट आई वांट, दिस कस्टमर आईडी शुड बी लिंकिंग अ रो इनटू कस्टमर टेबल। मतलब ऑर्डर किसने प्लेस करी उसका बस मैं आईडी मेंटेन कर सकता हूँ कि ये ऑर्डर इस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी कस्टमर ने प्लेस करी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर आईडी उसको लिंक कर रहा हूँ कस्टमर टेबल के प्राइमरी की के साथ। यहाँ पर लिंकिंग क्या हो रहा है, कस्टमर टेबल की प्राइमरी की उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? ऑर्डर टेबल में। कब रहेगी? जब अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करी तो। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, कस्टमर ऑलरेडी डेटाबेस में होगा आपके पास, तो उसने ऑर्डर प्लेस करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो ऑर्डर टेबल में हम एंट्री करेंगे, ऑर्डर आईडी, उसका नाम और फिर कस्टमर का आईडी। चलो देखते हैं। अब मुझे क्या करना है इस पर्टिकुलर, पहले तो देखो व्हाट इज फॉरेन की, व्हाट इज फॉरेन की। It is helping, it is kind of a linking between 2 tables, which creates a link between 2 tables. So foreign key in one table, whatever the values are there, the values will be from some other table's column, primary key column.
चलो देखते हैं। नाउ ये टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है अभी, फॉरेन की कंस्टेंट ऐड करना है। मुझे क्या करना है, फॉरेन की। अभी कौन सी फॉरेन की है इसमें, फॉरेन मतलब कहीं बाहर, इसका डेटा कहाँ से है, बाहर से। इस टेबल में जो डेटा है, इस टेबल में जो कस्टमर आईडी कॉलम है, कौन सा, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी फील्ड, दिस फील्ड इज फॉरेन, दिस फील्ड इज फॉरेन। कहां से, कहां से, ये कौन से टेबल से है, कस्टमर, परफेक्ट। और कस्टमर में कौन सी, आईडी। फॉरेन की, फॉरेन का मतलब क्या होता है, यहां से नहीं, कहीं और से। इस फील्ड के अंदर, इस कॉलम के अंदर, या इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट बोल सकते हो आप, इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है, दीज वैल्यूज आर नॉट फ्रॉम दिस टेबल, दीज वैल्यूज फ्रॉम सम अदर टेबल्स कॉलम। तो सम अदर मतलब कस्टमर। एग्जाम्पल, अभी दो टेबल आपके पास, कस्टमर और ऑर्डर। तो ऑर्डर टेबल के अंदर जो तीसरा कॉलम है कस्टमर आईडी, उसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, जो कस्टमर टेबल में आईडी फील्ड के अंदर है, वो वाली फील्ड रहेगी। राइट, चलो देखते। नाउ लेट मी रन दिस। टेबल क्रिएट हुआ। नाउ लेट मी शो बोथ द टेबल्स। कस्टमर ऑल्सो, यहां पर देखो आईडी नेम है, एड्रेस, और दूसरा ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर आईडी नेम, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी नेम एंड कस्टमर आईडी। अभी मैं पहले कस्टमर टेबल में एंट्री करता हूं। आई विल जस्ट एंटर अ कस्टमर एंट्री इनटू दिस। कस्टमर में एक एंट्री करते हैं, इनटू कस्टमर, एंड यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, आईडी नेम एंड एड्रेस, आईडी नेम एंड एड्रेस। और वैल्यूज है आपकी कस्टमर आईडी 1, कस्टमर है लेट्स से संदीप एंड एड्रेस इज पुणे। ठीक है, आई विल इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड। we have let's say Shubham. Shubham is from let's say USA. चलो दो कस्टमर्स है मेरे पास, कस्टमर्स। सो दो रिकॉर्ड है, वन इज फ्रॉम पुणे, वन इज फ्रॉम यूएस। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करे। अभी लेट से कस्टमर है, लेट से मुझे अभी कौन से टेबल में ऑर्डर प्लेस करना, मतलब ऑर्डर टेबल में एंट्री जाएगा, तो कहां पर जाएगा, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। और क्या क्या वैल्यूज रहेगी, ऑर्डर में तीन ही फील्ड है, आईडी, ऑर्डर आईडी है, नेम रहेगा, नेम मतलब ऑर्डर में क्या ऑर्डर प्लेस किया, और है कस्टमर आईडी। और वैल्यूज, वैल्यूज में ऑर्डर आईडी लेट से फर्स्ट ही ऑर्डर प्लेस किया, और ऑर्डर क्या है लेट से मोबाइल। और किसने प्लेस करी, इसका मतलब किसने प्लेस करी, कैसे, यहां पर कौन सी आईडी लिखोगे आप, कोई भी। मैं यहां पर लिख रहा हूं 3, व्हाट विल हैपन, आप कुछ भी वैल्यू नहीं दे सकते उधर। ऑर्डर किसने प्लेस किया, कौन से कस्टमर ने प्लेस किया, उसका आईडी देना पड़ेगा इधर। तो यहां पर कस्टमर आईडी कौन सा होना चाहिए, विच कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी विच इज देयर इन द कस्टमर्स टेबल। तो यहां पर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, वहां पर दो कस्टमर है, आइदर 1 या 2, तो यहां पर 1 इंसर्ट हो गया, यस। सो आप देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, वहां पर एक एंट्री है, किसने डाली है, कस्टमर आईडी। दूसरा एक और ऑर्डर प्लेस करता हूँ, लेट्स से लैपटॉप्स, ये भी कस्टमर 1 ने बाई किया।
और इसने किया लेट्स से फ्लाइंग फोन, ये दिया किसने, शुभम ने। तो मुझे पता करना है अभी कस्टमर आईडी, कस्टमर 1 ने 2 ऑर्डर प्लेस किए, अभी कितने भी कर सकते हो साल भर में, 200 300 400 500। तो आप मुझे बताओ फॉरेन की टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है ना। ऑर्डर टेबल में मल्टीपल, कस्टमर आईडी फील्ड में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, यस इट कैन हैव, राइट। सो कौन सा टेबल है आपके पास? 2 टेबल है। कस्टमर, नाउ हु इज डिपेंडिंग ऑन हुम, हु इज डिपेंडेंट ऑन हुम? ऑर्डर्स इज डिपेंडिंग ऑन कस्टमर। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, कैन आई डिलीट customer 1 from customers table? I want to delete one record from customer table. Delete from customer, सारे डिलीट करना है मुझे, कर सकता हूँ मैं? अरे नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते? समझे क्वेश्चन? एक कस्टमर ने 2 ऑर्डर प्लेस करी, वो कहाँ पर है उसका डिटेल्स? ऑर्डर में। और दूसरे कस्टमर ने एक और ऑर्डर प्लेस करी है, उन्हों को दोनों का रिकॉर्ड है, तो मैं कस्टमर डिलीट कर सकता हूँ? नो, cannot delete or update a parent row foreign key constraint fails। तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिलीट करना है तो पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा ऑर्डर्स, देन यू कैन डिलीट द कस्टमर्स। याद रहेगा ये? तो बहुत बार ऐसे आपको आएंगे क्वेरीज की आप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि दैट कॉलम फील्ड इज लिंक टू सम अदर टेबल, दैट पर्टिकुलर फील्ड इज लिंक टू सम अदर टेबल, तो आप डिलीट नहीं कर सकते। कैन यू डिलीट अ कॉलम और कैन यू डिलीट अ रो विच इज हैविंग रेफरेंशियल रिलेशनशिप विद सम अदर टेबल? आंसर इज सिंपली नो। तो आप डिलीट नहीं कर सकते, याद रहेगा। कौन से टेबल में? पेरेंट में क्या चेंज कर सकते हो आप? आईडी छोड़ के जो करना है करो, आईडी छोड़ के चेंज करना है, जो चेंज करना है वो कर सकते हो। जैसे अपडेट टेबल कस्टमर, अपडेट टेबल कस्टमर, सेट नेम equal to let's say Ritik, where id equal to 1। क्या हुआ? हाँ, टेबल की लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप उसने इसका नाम चेंज कर दिया, आपने कस्टमर का नाम चेंज हो गया, दैट इज फाइन, वो चेंज कर सकता है। चेंज क्या नहीं हुआ? आईडी। उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हो आप। ऐसा कंपलसरी है क्या? आप मतलब एड्रेस चेंज फ्रॉम टारगेट कर सकते हो आप, दैट्स फाइन। क्या चेंज नहीं कर सकते? बस आईडी को आप कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर एडिट कर सकते हो आप, यस, ऑर्डर भी एडिट कर सकते हो आप, सिंपल। इसे कैस्केड इफेक्ट बोलते हैं। क्या? कैस्केड इफेक्ट। अब मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि कस्टमर 1 ने कौन कौन से ऑर्डर प्लेस करे, कैसे फाइंड करोगे? क्वेरी के साथ। जॉइंस पढ़ना है हमें, बस आपको वही क्वेश्चन पूछा है मैंने। जॉइंस पढ़ने के बाद आप बता पाओगे, लेकिन अभी के लिए ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? कस्टमर 1 ने कौन से ऑर्डर प्लेस किए, उसका लिस्ट चाहिए मुझे।
बोलो। अरे मुझे डेटा फेच करना है, डेटा फेच करना है मुझे। सेलेक्ट क्वेरी ये रहेगा, सेलेक्ट क्वेरी। डेटा अभी हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। दोनों मुझे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी जिसका 1 है, लेट से ऋतिक ने कौन कौन से ऑर्डर किए वो पता करना है मुझे। हाँ, सेम क्वेश्चन पूछा था मैंने। जिसका आईडी 1 है, हाँ चलो जिसका आईडी 1 है, हाँ तो ऋतिक ही है आपके पास। चलो चलो कस्टमर आईडी 1 ले लो, चलो हाँ। हाँ ठीक है, क्या आएगा उसमें? कौन सी ऑर्डर आएगी, वेयर? क्या बोले आप, कस्टमर आईडी राइट, कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। इसमें बस क्या आएगा, ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन मुझे उसका नाम भी चाहिए, उसका ईमेल आईडी भी चाहिए, फोन भी चाहिए। चलो मुझे पता करना है, ऋतिक ने लास्ट ईयर कितने ऑर्डर्स करे, 2023 में कितने ऑर्डर प्लेस करे? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल हमें यही देखना है। तो कल हमारा पूरा फोकस यही पे रहेगा, सेलेक्ट क्वेरी पर, डेटा प्रोजेक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट 2 सेशन हमारा बस सेलेक्ट ही रहने वाला है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। सेलेक्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है हमें, जॉइंट्स हो गया आपका, कीवर्ड्स हो गया, बहुत सारी क्लॉजेस हो गई, वो सारा चेक करना है। सो क्या क्या हमें पढ़ना है, वेयर क्लॉज है, ग्रुप बाई है, हैविंग है, जॉइंट्स है, नॉट नल है, ऑपरेटर्स है, बिटवीन, इन रेंज। वो कंडीशन ऐड होता है, वेयर क्लॉज से कंडीशन ऐड होता है, और वो जॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। So join is a concept using which we can fetch data from more than one table. दिखाएंगे ना अभी, चलो। हाँ पूजा बोलो। प्राइमरी की और यूनिक के में एक डिफरेंस है। प्राइम यूनिक में आपको नल वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो, राइट। जस्ट सेकेंड, मैं आपको डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ, सो यू विल गेट दैट आइडिया। ओके, स्टूडेंट टेबल आई हैव ड्रॉप्ड एंड आई विल क्रिएट ओन वार क्या है, यूनिक। सो इसको चेक करता हूँ, यूनिक। ओके, अब देखो मेरा आईडी है प्राइमरी की और फोन नंबर है यूनिक। सो आई विल जस्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब मुझे बताओ क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम, ईमेल, फोन और जेंडर और वैल्यूज। आईडी है 1, नेम है लेट्स से पूजा, ईमेल है puja@gmail.com एंड फोन है लेट्स से 123, जेंडर से F। ठीक है, अब यहां पर प्राइमरी की आपका आईडी है और फोन इज यूनिक, फोन इज यूनिक। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। नाउ आई विल ट्राई वन मोर टाइम, और इस बार मैं फोन वैल्यू नहीं दे रहा हूं, फोन वैल्यू नहीं दे रहा हूं मैं। तो यहां पर बस रहेगा आईडी
नेम, ईमेल और जेंडर. डेटा इंसर्ट हुआ? यस. नाउ चेक द स्टूडेंट टेबल. Let me add one more record. देखो one more time. What is the difference? दोनों में डिफरेंस क्या है? वही तो क्वेश्चन है, राइट? और यहाँ पर अभी मैं फिर से फोन ऐड करता हूँ और देखो यहाँ पर फोन पहले कितनी वैल्यू है? 1. अब फिर से मैं 1 ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ. क्या हो रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूछ रहे हो, राइट? अब देखो मैं प्राइमरी की मेरा अलग दे रहा हूँ 4 और यहाँ पर मेरा फोन नंबर है यूनिक. दो वैल्यूज मेरी नल है, वहां पर दो वैल्यूज क्या है? नल. और मैं फिर से 1 इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूं. कैन यू सी दिस नल? 3 रिकॉर्ड है मेरे पास. अभी मेरे पास 3 रिकॉर्ड है. तीनों में आपका आईडी यहां पर देखो कंपलसरी है. अभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप आईडी ना दो. मैं आईडी नहीं देता हूं प्राइमरी की. और आपका फोन नंबर 2 ऐड कर दे रहा हूं मैं. कंपलसरी, इट इज मस्ट. कंपलसरी, इट इज मस्ट नाउ. It is must to specify primary key. But whereas in the unique key, is it must? Whether it is must? No, it is not must. अगर मैं फोन हटा दूं तो चल जाएगा, that's fine. आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा. रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, yes. One more time. आपका फोन नंबर नल है. Record is inserted, but when you cannot insert a record in the table, if the primary key is not there. प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? वहां पर रिकॉर्ड लिखना कंपलसरी है और जो भी रिकॉर्ड लिखोगे वहां पर जो वैल्यू रहेगी वो दैट शुड बी यूनिक. लेकिन यूनिक के केस में क्या है? वैल्यू देना नहीं देना ऑप्शनल है, लेकिन देते हो तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? यूनिक. सिंपल. और मैं फोन नंबर दे रहा हूं यहां पर. मैं फिर से फोन नंबर 1 देने का ट्राई कर रहा हूं. फोन नंबर इज 1. सी हियर, प्राइमरी की आई एम गिविंग इज 5, बट फोन इज डुप्लीकेट. फोन इज डुप्लीकेट. अभी मैंने चेंज कर दिया. इट इज एबल टू फेच द रिकॉर्ड्स. ठीक, क्लियर है? यूनिक और प्राइमरी क्या डिफरेंस है? यूनिक मतलब वहां पर वैल्यू देना नहीं देना कंपलसरी नहीं है. अगर वैल्यू देते हो तो दैट वैल्यू मस्ट बी यूनिक. प्राइमरी की में वैल्यू देना कंपलसरी है, मस्ट है. और जो भी वैल्यू दोगे दैट शुड बी यूनिक. यस, आई होप पूजा मेरे को क्लियर है डाउट. ओके, और किधर हो आप? मैं भी अभी कल से परसों से मैं घर जाने वाला हूँ. मैं भी अभी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ. चलेगा? ठीक. ओके, सो इट वाज प्लान टू हैव योर कंस्टेंट्स पे प्रैक्टिस करो. और जो भी मैंने अभी तक क्वेरीज दिया है ये सारा प्रैक्टिस करो. कंस्टेंट्स, सो दिस पार्ट वी हैव कवर्ड. डेटा प्रोजेक्शन इज द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट क्लास में हम डेटा प्रोजेक्शन पढ़ने वाले. बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट 2-3 दिन हम यही पढ़ने वाले. और टाइम मिले तो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस गो थ्रू कर सकते हो. आई हैव एडेड सम क्वेश्चंस. बेसिक एसक्यूएल क्वेश्चंस है, क्वेरी है, फिल्टरिंग है, थोड़ा बहुत है, कर सकते हो आप. डेटा प्रोजेक्शन कल हम वेयर क्लास, ऑर्डर क्लास, लिमिट, ऑफसेट, एग्रीगेट फंक्शंस, लाइक ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं.
हाँ, दोनों में कुछ डिफरेंस है नहीं फिर, दोनों एक साथ लिख रहे हो ना आप। प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, तो डिफरेंस है नहीं कुछ, फिर यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा वो, आइडेंटिफायर रहेगा वो। अब मेरे पास, ऐसे समझो, मेरे पास चार फील्ड्स है, समझो इसको। वन लास्ट थिंग, इनका क्वेश्चन है कि यूनिक और नॉट नल दोनों एक साथ लिखें तो क्या डिफरेंस है। तो मेरे पास ऐसे समझो, चार कॉलम्स हैं, चार, एक और चलो पांच, सबको मैंने इसमें से मतलब फर्स्ट कॉलम छोड़ के सबको मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, so I have specified all of these as not null, not null and unique, और इसको मैंने स्पेसिफाई किया प्राइमरी की। अब इस पर्टिकुलर टेबल में कौन सा कॉलम रहेगा विच विल यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकनेस किसके बेसिस पे आपको रखना है। मैं सारे फील्ड्स नॉट नल और यूनिक रख सकता हूँ, सारे कॉलम्स, लेकिन मुझे क्या करना है, एक ऐसा कॉलम रखना है दैट विल बी द यूनिक आइडेंटिफायर। अभी लेट से आपका आपका आधार नंबर इज द प्राइमरी की, थिंक ऑफ प्राइमरी की एज आधार नंबर, बाकी सबका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं यूनिक रख सकता हूँ, मोबाइल नंबर भी यूनिक रख सकता हूँ, नॉट नल भी रख सकता हूँ, लेकिन मोबाइल नंबर और ये दोनों में मतलब विच वन इज आइडेंटिफायर, वही। So if you want uniquely identifying column, then you specify it as primary key. मतलब आप सारे कॉलम्स आपके ऊपर है कि नॉट नल और यूनिक रखना है, इट इज़ अप टू यू। फ़ोन नंबर रख सकते हो, ईमेल रख सकते हो, या और भी कुछ, लेट्स से पासपोर्ट नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, ऐसे फील्ड्स आप नॉट नल यूनिक रख सकते हो, लेकिन सबको थोड़ी प्राइमरी की बनाओगे आप। प्राइमरी की कोई एक होगा विच विल यूनिकली आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। क्लियर, ओके। सो कल हम पढ़ने वाले हैं मोस्टली आपका सेलेक्ट, सो बी प्रिपेयर्ड। सेलेक्ट में बहुत सारी क्वेरीज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 डेज, जो भी टाइम रहेगा। सो विल बी फोकसिंग ऑन द सेलेक्ट क्वेरीज, मे बी अराउंड 100 क्वेरीज प्लान करने वाले हैं हम, ओनली ऑन दी सेलेक्ट। सो देर विल बी डिफरेंट यूज केसेस, तो इसलिए मैंने डेटाबेस स्कीमा भी आपके लिए लेके आया हूँ मैं, आई विल टेक दैट। तो कुछ स्कीमा है मेरे पास, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट HR स्कीमा नेक्स्ट क्लास के लिए। आई विल जस्ट कॉपी दिस, ये सारी क्वेरीज मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। आई विल जस्ट, so you'll be able to see all of the queries here जो आज के क्लास की है। अब ये स्कीमा मैं की यूज करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज ऑल ऑफ दीज, क्या हुआ, ओके, आई विल एग्जीक्यूट दिस स्कीमा नेक्स्ट क्लास, दैट्स फाइन। तो मोस्टली हमारा स्कीमा कैसे रहने वाला है, आई विल शो यू दैट। रीजन्स रहेंगे, कंट्रीज रहेंगे, लोकेशन, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज, जॉब हिस्ट्री, एम्प्लॉय डिटेल्स, तो आपको बहुत सारी क्वेरीज आएंगी। फाइंड द एम्प्लॉय हु इज द मैनेजर, फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हु आर रिपोर्टिंग टू समवन एल्स, मतलब कोई एक मैनेजर है, उसके कितने सारे लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, फाइंड दैट क्वेरी। उसके बाद फाइंड द एम्प्लॉयज हु आर फ्रॉम लेट्स से पुणे, फाइंड द एम्प्लॉयज हु आर फ्रॉम मुंबई, फाइंड द एम्प्लॉयज हु आर फ्रॉम लेट्स से USA, फाइंड द एवरेज सैलरी फ्रॉम द गिवन टेबल, वी हैव लेट्स से 10,000 एम्प्लॉयज आप, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। फाइंड द हाइस्ट ग्रॉसिंग सैलरी, किसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, सबसे कम सैलरी किसको मिलता है, या एवरेज सैलरी कितना है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एवरेज टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉय,
कितना एवरेज टेन्योर कितना है. I want to know how many people have joined in the month of, let's say, Jan 24. How many people are, let's say, what is the youngest employee in the company? Who is the oldest employee in the company? What is the average age? Whose birthdays are falling into, let's say, month of Jan? उनको मुझे मेल भेजना है, गिफ्ट भेजना है. जो का ऐसी बहुत सारी क्वेरीज रहेगी आपके पास. यू विल हैव लॉट ऑफ सच क्वेरीज. तो मुझे पता करना है कि आईटी डिपार्टमेंट में कितने सारे लोग हैं, उनका एवरेज सैलरी कितना है. सो गिव मी द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज डिपार्टमेंट इज़ आईटी. और मुझे सारे डिपार्टमेंट वाइज, लेट्स से मेरे पास 10 डिपार्टमेंट है, आईटी, एचआर, एडमिन. तो हर एक डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिलता है, वो लोगों की लिस्ट चाहिए मुझे. आईटी में सबसे ज़्यादा किसको सैलरी मिलता है, एचआर में सबसे ज़्यादा किसको सैलरी मिलता है, मिनिमम कितना सैलरी मिलता है, एवरेज कितना सैलरी मिलता है, हर एक डिपार्टमेंट वाइज. ऐसी बहुत सारी क्वेरीज है, तो इसलिए उसको डेटा प्रोजेक्शन बोलते हैं. सो वी विल बी क्वेरिंग, वी विल बी एनालाइजिंग द डेटा इन डिफरेंट वेज, विल बी क्वेरिंग दैट. चलो देखते नेक्स्ट क्लास. फॉर नाउ वी विल स्टॉप.